Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to take a look at CAT 2020. First slot, the morning slot, second RC passage. Okay? So chalo, without any delay, let's dive in, see what the passage is about. As usual, I recommend pausing the video here, reading the entire passage, then use the timestamps in the description box. Also, keep a timer running in parallel if you are preparing for your CAT exams. Keeping a good track of how much time you take per passage, especially doable ones, easy ones like this. Okay, I won't give a lot of spoiler right now. One important thing to keep in mind, CAT 2020, 5 question passages had come, two passages, two RCs for 4 questions each, and two RC passages, 5 questions each. So actually, the RC section that year composed of 18 questions in all and 8 questions for VRC. That format changed, and for CAT 21 and 22, we had only 4 questions per RC. So यहाँ पर ये आपको एक difference मिलेगा. We are going to take a look at 5 questions. So ठीक है. If you are keeping a timer and if you take a minute or two extra compared to your usual other passages, तो वो 1-2 आप 1 minute discount कर सकते हो because there are 5 questions here. ठीक है. तो चलो. Let's begin. I hope that you've read it, solved it properly, and देख सकते हो बहुत ही प्यारा पैसेज है. ठीक है. Every year in every slot, I believe that there is one passage जो वो क्वेश्चन बनाने वाला, वो आरसी पैसेज सेट करने वाला एकदम सबका साथ सबका विकास का एक माइंड सेट लेके बैठता है कि भाई एस्पायरेंट को कुछ जमे ना जमे पूरे सेक्शन में, ये पैसेज तो जम ही जाएगा. तो फॉर मी आई थिंक CAT 20 slot 1, दिस वाज दैट passage, सबका साथ सबका विकास टाइप. ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल है. आई विल गिव अ शॉर्ट सिनॉप्सिस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. ठीक है, चलो देखते हैं. तो ऑथर सेज कि भाई अगर आपको सेंटेंस बोलना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, तो वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर टोटल 7 or 8 इन ऑल, एंड टू पुट देम टुगेदर वी जनरली फॉलो कॉमनली अग्रीड अपॉन रूल्स ऑफ ग्रामर. ठीक है. तो व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट इट, तो ऑथर सेज कि अगर ये रूल्स हमने ब्रेक किया, अगर ये रूल्स हम फॉलो नहीं करते, तो देन केओस एंस्यूज. ओके, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, एंड ही हैज मेड इट वेरी क्लियर. लुक एट द strength of this statement over here. He is very assertive when he says bad grammar produces bad sentences. So right from the start, author का जो stand है बहुत ही clear हो गया है. He is a grammar fanboy. Okay, so he is giving us a example कि मेरा favorite example of grammar gone bad is this statement: as a mother of 5, my ironing board is always up. नाउ इफ यू आर एन ओकेश पर्सन जो दिन रात ग्रामर की पढ़ाई नहीं करते हैं एट ऑल, तो ये सेंटेंस दिखने में एक्चुअली करेक्ट लगता है, बट देयर इज अ फ्लॉ हियर. ठीक है, आई विल राइट इट स्टेटमेंट वंस अगेन ओवर हियर एंड इसका फ्लॉ डिस्कस कर लेते हैं. आई नो आई एम गोइंग अ लिटिल बिट ऑफ टॉपिक हियर, बट यस, इफ यू आर एनीबडी, इफ यू हैव GMAT और इवन MBA CET ऑन योर radar, तो ये रूल, ये या फिर ये इस प्रकार का सेंटेंस करेक्शन आपको पता होना चाहिए. Personally speaking, I'm not a massive fan of grammar actually. I detest studying it, especially with respect to exam. Grammar as a concept मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. It helps, of course, it helps to make your communication very, very good, very solid, very mature. Anyway, coming back to the sentence, as a mother of 5, my earning board is always up. पहली रीडिंग में एकदम करेक्ट लगता है, but the flaw here is this is called as a misplaced modifier. सेंटेंस का इस फॉर्म में क्या मीनिंग निकलता है पता है, कि आपका जो ये आयनिंग बोर्ड की आप बात कर रहे हो ना, इस्त्री करने का टेबल, ये एक मदर है खुद, और इसलिए आयनिंग बोर्ड हमेशा यूज में क्यों रहता है, क्योंकि आयनिंग बोर्ड 5 बच्चों की माता है. हाउ इज दैट पॉसिबल टू, लाइक सीरियसली, साउंड्स रिडिकुलस, राइट? So that is why this sentence is incorrect. ठीक है. So what you should be writing here is, in order to make it correct, my ironing board is always up as I am a mother of 5. या फिर अगर इसको थोड़ा सा और आपको क्रिस्प शॉर्ट में सही करना है, तो as I am a mother of 5 kids, of course 5 kids, 5 children, whatever, my ironing board is always in use, is always up. ठीक है. So that is a slight discrepancy over here. I'll not dwell much more into this. Author is simply saying कि देखो, ये ऐसा ऐसा सेंटेंस मेरा सबसे बड़ा ऑल टाइम फेवरेट है ऑफ ग्रामर गोइंग बैड. एंड यस, एज यू कैन सी व्हाट इज ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि अगर आपने ग्रामर गलत कर दिया तो कंफ्यूजन का, मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश बढ़ जाती है. तो यस, इन दिस सेंटेंस एज अ मदर ऑफ 5, माय अर्निंग बोर्ड इज ऑलवेज अप. So if you are somebody who pays very close attention to what is being said, so what you will interpret from this sentence is कि आपका ironing board को 5 बच्चे हैं. How is that possible, right? So
that is what the author is trying to highlight. Anyway, coming to the now the second paragraph, बहुत ही clear cut crisp बात कर रहा है. When reading the passage ना, it was like somebody who shares my mentality. तो उस इंसान ने लिख दिया है ये, बिल्कुल ऐसा us pro us type feel आया मुझे पैसेज पढ़ते हो. I enjoyed a lot reading it. The questions are subpar, okay, but the content of the passage really fun. क्या लिखा है कि भाई नाउन और वर्ब ये दो इंडिस्पेंसेबल पार्ट है. आपको सेंटेंस बनाना है, इन दोनों को साथ में रखो तो ही आपका सेंटेंस बन सकता है. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट इन इंग्लिश ग्रामर. व्हाट यू शुड रिक्वायर इज, व्हाट यू नीड इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट या फिर वर्ब, या फिर नहीं और. ठीक है, अगर इसके बिना आपने कुछ बनाने की कोशिश की तो वो सेंटेंस ही कहला ही नहीं जा सकता. एंड व्हाई डू यू रिक्वायर प्रॉपर अप्रोप्रिएट कंप्लीट सेंटेंसेस? You need them because only then the thought that you want to put forward, the thought, the idea that you want to implant in the reader's head, उसके लिए ठीक सा ग्रामर होना जरूरी है. ठीक है, तो कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ नाउ, अब ऑथर खुद ही सवाल पूछता है और फिर खुद ही जवाब देता है कि भाई जरूरी है क्या हर हर बार कंप्लीट सेंटेंस बनाना यहाँ पर. ठीक है, तो वो खुद ही जवाब देता है इसका. ठीक है, कि नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. ओके, ये सेंटेंस कंप्लीट लिखना बार बार जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है. क्योंकि कभी कभार कुछ कुछ क्लॉजेस इनकम्प्लीट सेंटेंसेस से भी बात हो सकती है. अगर आपने कभी इनकम्प्लीट सेंटेंस बना दिया ऑथर से, तो कोई बात नहीं, आप लोड मत लो. ग्रामर पुलिस आपको उठा के नहीं ले जाएगी कि चलो चलो तुमने गुनाह कर दिया, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा ठीक से ग्रामेटिकली करेक्ट. ऐसा नहीं है. Rather to reinforce his opinion, author is bringing out this guy William Strunk, who seems to be एक नंबर का ग्रामर नाजी. वो खुद भी एक्सेप्ट करता है ये बंदा कि नहीं ठीक है यार, इट्स ओके. समटाइम्स इवन द बेस्ट राइटर्स इग्नोर ग्रामर के रूल्स, समटाइम्स इवन दे डू अ लिटिल बिट ऑफ मनमानी. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैवियट है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन डाली गई है विच द ऑथर हैज आल्सो एम्फसाइज्ड इन द फोर्थ पैराग्राफ. व्हाट इज दैट कंडीशन? Unless he is certain of doing well, the writer would probably do best to follow the rules. इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी. What does the author mean by this? बढ़िया बढ़िया एक आयरनी हाईलाइट होती है इस सेंटेंस की. ऑथर ने खुद ने बोला है जरूरी है क्या ग्रामर फॉलो करना, सेंटेंस पूरा हर बार लिखना? नहीं. विलियम स्टर्न का भी उसने एग्जांपल दिया कि भाई ये इतना बड़ा ग्रामर नाजी खुद एक्सेप्ट करता है कि जाने दो, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी लिखना ओके है. लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आप श्योर नहीं हो कि भाई मैं जो लिख रहा हूं वो एकदम सोने के बराबरी का वैल्यू है उस लिखी हुई बात का, तो फिर भाई भला इसमें है, आप ग्रामर फॉलो करो शांति से पूरे पूरे सेंटेंस. तो ऑथर ने इस चीज के ऊपर में थोड़ा सा बवाल क्रिएट किया. ऑथर ये कहता है कि ग्रामर कौन फॉलो नहीं करता, तोड़ता कौन है ग्रामर के रूल्स? हु गोज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ ग्रामर? जिसको आता नहीं, पर्सन हु इज वीक इन ग्रामर. ठीक है, और ऑथर कहता है कि अगर आप ऐसे इंसान हो जिसका ग्रामर वीक है, तो फिर आपको क्या ही समझेगा बॉस कि वॉट एवर यू आर राइटिंग इज इट रियली गुड क्वालिटी? क्या आपको ये दिमाग अक्ल है उतनी? थोड़ा सा कॉन्डिसेंडिंग टाइप टोन आया है यहाँ पर, इन द लास्ट कपल ऑफ पैराग्राफ. आई डिड नॉट लाइक दैट कॉन्डिसेंडिंग टोन, बट ठीक है. गोइंग बियॉन्ड इट, व्हाट डज द ऑथर से कि अगर आपका ग्रामर के ऊपर अच्छी पकड़ नहीं है और आप ग्रामर तोड़ते हुए आधे अधूरे सेंटेंसेस लिखते चलते हो, तो क्या ही अच्छा लिख लोगे यार बॉस. तुमको तो बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आते, तो तुम्हारा लिखाव क्या ही दम रहेगा उसके अंदर. तो इसीलिए ऑथर रेकमेंड्स कि भाई ज्यादा उड़ो मत, आप ना ग्रामर के रूल्स फॉलो कर लिया करो. दैट इज व्हाट इज राइटिंग. क्योंकि जो इंसान समझता है ना ग्रामर के रूल्स, ग्रामर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, उसको अच्छा लगता है. ही फाइंड्स अ कंफर्टिंग सिंप्लिसिटी एट इट्स हार्ट. ग्रामर के हार्ट में उसको बहुत अच्छी प्यारी सी एक सिंप्लिसिटी मिलती है. वो क्या है? पूरा सेंटेंस ही लिखना है ना, कंप्लीट ग्रामेटिकली करेक्ट, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. क्या चाहिए? मिनिमम आपको नाउन चाहिए, ठीक है, और आपको कुछ वर्ब्स चाहिए. बस जी, हो गया आपका काम. ज्यादा कुछ हेवी ड्यूटी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट ही इतना है टू राइट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, दैट यू नीड ओनली नाउन एंड वर्ब पुट टुगेदर प्रॉपरली, तो फिर लोड कैसी बात का.
अगर आपको ये भी मिनिमम रूल फॉलो नहीं करना है, अगर आप ये कैटेगरी में आते हो, तो भैया क्या ही लिख लोगे तो। बेसिकली बेसिकली द ऑथर इज जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम सही औकात ही क्या है तुम्हारी। ओके, बस रुक गया वो, ऐसा लगता है पर्सन वाज राइटिंग इट ना, एकदम लास्ट मोमेंट यहाँ पे आके उसने रोका है। एंड देन ही एम्फसाइजेस दिस थिंग, दिस पार्ट ऑल ओवर अगेन इन द लास्ट पैराग्राफ, कि कुछ लोगों का बोलना है, ऑथर अब थोड़ा सा लिबरल बनता है यहाँ पे, कि कुछ लोगों का बोलना है कि भाई बहुत ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस यूज मत करो। ठीक है, लेट्स हाईलाइट इट। वाइट क्वेश्चन, स्ट्रंक एंड वाइट क्वेश्चन। कौन है स्ट्रंक एंड वाइट? जिन्होंने ये एग्जांपल दिया है हमको, ठीक है, एज अ मदर ऑफ फाइव आयरिंग कोड वाला। ये बंदे बोलते हैं कि देखो बॉस, बहुत ज्यादा ना सिंपल सेंटेंसेस मत यूज करो। जो भी तुम लिखते हो, मे बी यू आर राइटिंग एन आर्टिकल, मे बी यू आर राइटिंग एन एंटायर बुक एज सच, डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी रहने दो, कुछ क्लॉजेस डालो, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस डालो, इस तरीके से। ऑथर diverges from these two guys over this point. He says कि नहीं यार, मैं नहीं मानता ये बात। मेरे लिए सिंपल सेंटेंसेस भी यूज करना खुद में बहुत प्यारी बात है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको डर लग जाता है ये सारे वर्ड सुन के, कैसे मॉडिफाइंग फ्रेजेस, एपोजिटिव्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये ढेर सारे प्रकार के क्लॉजेस, अगर आप ये चीजों से डरते हो, तो फिर चिंता की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना याद रखो, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ दैट रॉक्स एक्सप्लोर्ड, जेन ट्रांसमिट, माउंटेन फ्लोट, प्लम्स डी फाइव। मतलब कि ये सारे के सारे ये जो लिखे है ना, ये सारे सिंपल सेंटेंसेस है। मतलब ऑथर इज ट्राइंग टू हाईलाइट दैट यू डोंट नीड अ लॉट टू राइट ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंसेस। आप एक नाउन लो, एक वर्ब रखो ठीक से सही फॉर्म में, और आपका काम हो गया। यू हैव अ सेंटेंस, इट नेवर फेल्स। So don't worry if you cannot cook up fancy clauses, or if you cannot cook up compound complex sentences. Just relax in life, write properly, write in simple sentences. And why is this? He's once again, praising grammar very highly, deifying grammar actually. कि grammar is the pole you grab to get your thoughts up and walking. मतलब आपके दिमाग में कोई विचार है, आपको दुनिया के सामने उसे पेश करना है, उसको प्रोपैगेट करना चाहते हो आप, तो भाई ग्रामर का सहारा आपको लगेगा ही लगेगा। बहुत अच्छी चीज है, इसका हेल्प लो, इससे आपका काम बनेगा। थोड़ा सा वंस अगेन कॉन्डिसेंडिंग टच, एज आई मेंशन्ड, व्हिच आई डिड नॉट लाइक कमिंग इन फ्रॉम हिज एंड। इसने यहाँ पे लिखा है अनमैट बाय यू एट लीस्ट। तो कहीं ना कहीं ये आ गया ताने मारने से, कि अच्छा तुम रीडर, तुम ये चीजों से डरते हो ना, क्लॉजेस, मॉडिफाइंग फ्रेजेस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तुम्हारे लिए शायद ये बहुत अनजान बातें हैं, बहुत स्कैरी एरिया है जहाँ पे तुम आज तक गए नहीं। अब बट ठीक है, तुम्हारे लिए अनजान है, मैं तो बहुत औसम हूँ भाई, मेरे से औसम कौन है, उस टाइप का टोन इसमें आ रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इग्नोरिंग दैट, होगा दिल्ली वाला, होगा कोई एटीट्यूड वाला बंदा। तो ऑल इन ऑल, रैपिंग अप द पैसेज, ऑथर इज एक नंबर का ग्रामर फैन बॉय है, एंड ही इज एम्फसाइजिंग कि भाई ग्रामर के बहुत बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक वाले रूल्स है, आप वो फॉलो कर लो, आपका काम बन जाएगा। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ फैंसी थिंग्स। ऑन वन साइड ही अग्रीज अ लिटिल बिट विथ विलियम स्ट्रंग, कि अच्छी बात है, अगर ग्रामर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस में लिख लेते हो इधर उधर, तो चलेगा, बट द कंडीशन इज यू शुड बी 100% डैम कॉन्फिडेंट दैट वॉट एवर यू आर राइटिंग इज गोल्ड स्टैंडर्ड। एंड ऑथर हैज टेकन दैट आइडिया हेड एंड सेड कि अगर तुमको ग्रामर नहीं आता, तुम ग्रामर के रूल ब्रेक कर रहे हो, तो तुम क्या ही अच्छा लिख लोगे बे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, but at the same time he has confessed, he has agreed, sometimes the best writers out there, they break uh, grammar के rules, they break or they write in incomplete sentences। ठीक है, बस, but please keep in mind sometimes बोला है ये, बार बार नहीं, हर बार। okay, चलो, now let's going to the questions now. We have 5 questions, so stay tuned till the last one. First question, inferring from the passage, author could be most supportive of which of the following practices? ठीक है, effectively you have to find an option which the author will likely agree with. Typical critical reasoning question, let's take a look at the options। ठीक है, द क्रिटिक मतलब एक्चुअली एनी काइंड ऑफ एनालिसिस जहाँ पे आप चीजों की पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों बातें देख रहे हो। ओके, रादर, लेकिन आज के तारीख में अगर आप देखो, टू बी ऑनेस्ट,
तो इट हैज टेकन दिस क्रिटिसिज्म वाला एंगल पकड़ लिया है. दिस वर्ड टेक्निकली क्रिटिक means taking a look at both sides of the coin, but today it has you know become much more common to use criticism की जगह पे ये word. ठीक है. तो what does option A mean? कि criticism हुआ किया जा रहा है of standardized rules of punctuation and capitalization. Absolutely not. The author will not agree with it. Author is a grammar fanboy. ये सारी चीजें ग्रामर में आती है. Punctuation, capitalization, following rules like subject verb agreement, all that stuff. ठीक है. तो उसको क्रिटिसाइज करता हुआ, वो रूल्स को क्रिटिसाइज करता हुआ ऑथर बिल्कुल अग्री नहीं करे. रादर ही सेइंग कि अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. तो व्हाई विल ही क्रिटिसाइज? एब्सोल्युटली नॉट. ही विल नॉट अग्री विद इट. बी, a campaign demanding कि भाई राइटर का क्रिएटिव लाइसेंस शुड अलाउ ब्रेकिंग ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स. ओके, नाउ इफ यू रीड क्लोजली, ऑथर इज एक्चुअली एक्सेप्टेड, ही इवन फॉरवर्डिंग द असर्शन कि ठीक है, बेस्ट राइटर्स कभी कभी तोड़ते हैं ग्रामर का. यहां तक बात ठीक है, बट वुड ही गो ऑन अ कैंपेन डिमांडिंग दिस? नहीं नहीं, हमको दिन रात रूल्स तोड़ने ही है ग्रामर के, हमको करने ही दो. मैं पूरी किताब लिख दूंगा जिसके अंदर ग्रामर का फॉलो ही नहीं किया गया है. अरे नो, ऑथर इज नॉट गोइंग टू टेक दिस. ऑथर इज अ स्टिकलर फॉर रूल्स. ऑथर इज डेफिनेटली सेइंग कि भाई बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस. You break these rules here and there once a while, that is okay. All right. So definitely he is not going to go on a campaign वगैरह सीधा. This is too assertive in nature. He might passively accept somebody doing this, but never will he go himself on that kind of campaign. Option C, a creative writing course that focuses on how to avoid the use of rhetoric. यहाँ पर rhetoric is used as a substitutive term for proper rule flow of language, going about how to write stuff in a pleasing aesthetic manner. So once again, definitely author is not going to recommend this. P and C are actually fairly close to each other. कि avoid करना सीधा, और ऐसा कोर्स हम पढ़ा रहे हैं कि अरे बेटा चलो आओ बैठो, हम तुमको सिखाएंगे कि ग्रामर के रूल किस तरह बाईपास किए जाते हैं. हट चुप, ग्रामर आके दुकान बंद करेगा आपकी, ऑथर ऑथर आके. ठीक है. तो आंसर क्लियर कट बनता है ऑप्शन बी. द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो आपके लिए मदद करेगा टू अंडरस्टैंड, टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ ग्रामर एज अ टूल फॉर राइटर्स. तो दिस इज लाइक सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. ठीक है, तुम एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा लोड मत लो ग्रामर का. द सॉफ्टवेयर विल असिस्ट यू. यू फोकस ऑन द राइटिंग पार्ट. द सॉफ्टवेयर विल एंश्योर द ग्रामेटिकली करेक्ट वाला पार्ट. गुड, ऑथर इज हैप्पी विद दिस. ठीक है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज ही वांट? He wants good grammar because he is saying bad grammar causes bad sentences, misunderstanding. ठीक है. So I hope that you understood this question, even got it correct. Let me know in the comment section if any doubts. Hit that like and subscribe button if you haven't already. Let's go take a look at the second question now. ठीक है जी. Okay, a little bit wannabe type question. You find questions like this fairly commonly in CAT. CAT में थोड़े कम. हमें क्या बोला है कि भाई ये सेंटेंस का पढ़ाई कर लो अच्छे से. Take any noun, put it in a verb, and you have a sentence. It never fails. Mountains float, rock explode, Jane transparent. One noun, one verb, appropriately put together. जी बल्ले बल्ले हो गया, सेंटेंस बन गया. तो अब क्या? अब क्या? ऑथर से, क्वेश्चन सेटर से, सॉरी, 4 ऑप्शन दिया है मैंने. एक भी ऑप्शन ये सैंपल सेंटेंस से मैच नहीं करता, एक्सेप्ट. अरे यार, कितनी घुमा फिरा के बात बोली है. डबल नेगेटिव मेक अ पॉजिटिव. क्वेश्चन का मीनिंग बहुत बेसिक है. 3 ऑप्शंस ऐसे विच आर डिसिमिलर टू गिवन सेंटेंस. 1 ऑप्शन ऐसा है जो सिमिलर है टू द गिवन सेंटेंस इन स्ट्रक्चर और इन द वे मे बी दैट इज पुट टुगेदर. वो आपका आंसर है. सो जो सेंटेंस आपको दिया गया है क्वेश्चन में, इससे मिलता जुलता कॉन्टेक्स्ट में, फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में वो सेंटेंस जो ऑप्शन में बैठा है, वो ऑप्शन तुम्हारा आंसर है. ढूंढ के बताओ. एंड आंसर हैज टू बी ऑप्शन 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 डी, लास्ट वन. क्यों? क्योंकि सैंपल सेंटेंस देखो क्या बोला है. टेक एनी नाउन, पुट इट विद द वर्ब, यू हैव अ सेंटेंस. बेसिकली इंग्रेडिएंट 1 लो, इंग्रेडिएंट 2 लो, और मिल गया भाई तुमको फाइनल प्रोडक्ट. तो समथिंग लाइक दिस यहाँ पे ही हो रहा है. टेक एनी वेजिटेबल, पुट सम मिर्च मसाला इन इट. हाँ, तैयार, खाना तैयार है, खा लो. ओके. तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक टेक मैगी, बॉयल सम वाटर एंड बॉयल अप, यू हैव डिलीशियस नूडल्स, समथिंग लाइक दैट. ठीक है.
So effectively, the structure of the sample given sentences take two distinct things, but they fit very well with each other. And when they do, you have a final product in your hand. So you need two distinct things. Keep that in mind. Two distinct things, and that is actually sorely missing in other three sentences. What is happening in option A is you just take an apple tree, plant it in a field, and soon you have an orchard. It's like one apple or one apple seed giving birth to multiple same species या फिर same members of its community. Multiple या फिर दूसरी distinct चीज is not coming to picture. It's like आपने एक नाउन लिया, उसको ही बढ़ाते गए और ढेर सारी एक लिस्ट बना ली बहुत सारे नाउन्स की. No यार, we want to put it with something different so that you have a finished product in the form of this. So that finished product kind of scene is not coming in over here. That is why A gets thrown out. Okay. A group of nouns arranged in a row becomes a sentence. This sentence is actually itself laughable क्योंकि सैंपल सेंटेंस में आपको बोला है कि नाउन और वर्ब मिनिमम ये दो चीजें चाहिए, और ऑप्शन भी बोलता है अरे वर्ब वन लोड लेगा रे इसका, हट ग्रुप ऑफ नाउन्स रख दो हो जाएगा काम. सॉरी सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होता. दो डिस्टिंक्ट चीजें कहा है. एंड सी इज लाइक there are different people, there are distinct people in front of you, लेकिन all of them have what? Same equipment. मतलब दो डिस्टिंक्ट चीजें कमिंग टुगेदर वाला एंगल मिल ही नहीं रहा, एक्सेप्ट ऑप्शन डी. इट कैनॉट बी फाउंड इन एनी ऑफ द अदर थिंग. दैट इज व्हाई ऑप्शन डी क्लियर कट becomes the answer. Okay, so I hope that you got it correct. Let me know if any doubts in the comment section. And now let's go crack the third question. All of the following can be inferred from the passage except, मतलब तीन चीजें इन लाइन विद पैसेज मिलेगी, आप इन्फर कर सकते हो पैसेज पढ़ के. एक है जो नहीं होगा इन लाइन और विद द पैसेज, या फिर इन्फर नहीं कर सकते, वो आपका आंसर है. ठीक है, लेट्स गो. उल्टे से चलेंगे. ठीक है. डी, सेंटेंसेस डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी कंप्लीट. हाँ, ये तो बोलता है ऑथर यहाँ पे. विलियम स्ट्रंग का भी उसने फॉरवर्ड किया है, जो कमेंट किया है कि चल ठीक है यार, एक दो बार तुम ना मत लिखो पूरा सेंटेंस, चल जाए. तुम भी क्या याद रखोगे, मैं लोड नहीं देता. ओके, यस, करेक्ट. So we can infer this is in line, hence not the answer. C, grammar police is a metaphor for critics who focus on linguistic rules. Absolutely bang on point. लिखा है यहाँ पर grammar police are not going to take you away if you use incomplete sentence वगैरह कभी कभार. तो actually देखा जाए तो grammar police is a little bit of euphemism here. The more popular term that goes around on social media या फिर even in nerdy circles is grammar Nazi. Okay, that is the more popular term. Grammar Nazi will not, it is a metaphor for critics who tend to focus on linguistic. ठीक है. आप गलत ग्रामर में अगर बात करते हो तो होता है ना कोई एक बंदा जो आपका ग्रामर आके करेक्ट करेगा. So that guy is called as a grammar Nazi. Here instead of saying Nazi, it's written grammar police. So this is also in line with the passage. Correct है. Option B के ऊपर जाएंगे. Subject predicate relation is the same as noun verb relation. Absolutely, this is also correct. Where is it written? Highlighting it in green for you over here in second paragraph. Take a look at this. Author ने clear cut बोला है कि एक sentence सही बनाने के लिए you need a subject and a predicate. And what is the subject? It's a noun. And what is the predicate? It's a verb. So yes, the relation stays the same. Only the terms, only the jargon is varying. Hence, it can be inferred and not the answer. Naturally, answer बनता है option A. Why so? Because it has made this horrible mistake of saying primary purpose of grammar. क्या है ग्रामर का मकसद, क्या है भाई? सिंपल सेंटेंसेस बनाने में मदद करता है. चुप, ऐसा कुछ नहीं है. ग्रामर मिनिमम फ्रीडम आपको किस चीज का देता है कि भाई तुम सिंपल सेंटेंसेस बना लो, जिंदगी में ज्यादा लोड मत लो, चल जाएगा, वो ग्रामेटिकली करेक्ट. बट अखंड पूरा ग्रामर, पूरा व्याकरण उसके लिए नहीं बनाया गया ताकि तुम सिंपल सेंटेंसेस बना के खुश हो जाओ जिंदगी. And that is where option A goes out of track. It is not in line with what the passage says. ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं. Next question. If you have not hit that like and subscribe button right now, please do it ASAP. And now let's go look at the fourth sentence. My bad, fourth question. Which of the following quote best captures the main concern of the passage? I did not like the options at all, man. सीरियसली बहुत बोर किए ऑप्शन में, मजा नहीं आया. बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के क्या ही मजा आना है ना. मेन आइडिया क्वेश्चन. आंसर बट नेचुरल हैज टू बी
ऑप्शन ए, बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस। शुरुआत ही उससे की थी ऑथर ने, पूरा टोन जो सेट किया है क्लियर कट यहाँ से अच्छे ग्रामर के हिसाब से लिखो, अच्छा होगा। तुम ग्रामर के रूल तोड़ो, सेंटेंस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बिगड़ेगी बात, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होता। फॉलो करो ग्रामर फैन बॉय 101। तो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द आंसर। ठीक है। BCD, although present in the passage themselves, but they are nowhere the main concern of the passage. ठीक है, you are supposed to find out the main idea. These are like supplementary supporting ideas, not denying it, but overall सबसे ज्यादा फोकस किस पे? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो। फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक्चुअली ज्यादा कुछ इसमें ट्विस्ट एंड टर्न नहीं था, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगा फ्रैंकली स्पीकिंग क्वेश्चन, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, in my other videos I have explained how to handle questions like this, but in case you have not watched those, I'll tell you how to handle questions like this where blah 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 if false अगर लिखा है। इसके दो अप्रोचेस है सॉल्व करने के, एक है रिटर्न द क्वेश्चन चेंज द ऑप्शंस, और एक होता है चेंज द क्वेश्चन रिटर्न द ऑप्शंस। तो आई लाइक टू चेंज द क्वेश्चन एंड लेट द ऑप्शंस बी एज इट इज। प्लेइंग अराउंड फूलिंग अराउंड विद द ऑप्शंस इज अ वेरी रिस्की एरिया, आई डोंट क्वाइट रिकमेंड इट। तो क्वेश्चन किस तरीके से ब्रेक करेंगे या चेंज करेंगे, इंस्टेड ऑफ writing false, I will write not true. ठीक है, and then I will transfer this not to some other relevant verb in the question. तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे। So how do I read it? I read it like which of the following statements, if true, could be seen as not supporting the arguments in the passage. ठीक है, तो how does the question become now? What does the question look like now? So let me rephrase it a little bit. Let me use the highlighter. False की जगह पे हम लिख देंगे if true, or could be seen as not supporting the argument in passage. So now tell me, what does the question mean effectively now? It means कि सारे ऑप्शन जैसे वैसे के वैसे पढ़ो, and you will find three options which support what the author wants to say. ठीक है, and you are going to find one option which does not support what the author speaks about in the passage, and this one that not supporting guy, this idiot, is going to be your answer. ठीक है, so let's plot the options and let's jot down in order to avoid confusion. मैं ऑप्शन पढ़ूंगा उसके सामने देखो लिखते चलता हूँ, हाउ टू डिटरमाइन कि वेदर ये आंसर है या। ऑप्शन ए, an understanding of grammar good helps a writer decide if he or she is writing well or not. एकदम in line with the passage, author बहुत तारीफ करेगा, बहुत खुश हो जाएगा आप अगर ये सेंटेंस बोलो तो। and how can we say that? Please read the fourth paragraph once again. ठीक है, इसका explanation भी I have already given, where the author is time and again emphasizing कि तुम्हारा ग्रामर अगर खराब है तो तुमको क्या ही अक्कल है जज करने की कि जो भी लिखा है तुमने वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, फेयरली हार्श टोन कमिंग इन, बट नॉट किडिंग, जो बोला है वो जेन्युइनली सच बोला है, दिस इज एप्लीकेबल इन रियल लाइफ। ओके, तो यस, एनीवे, थिंकिंग अलोंग द लाइंस ऑफ द ऑथर, ऑप्शन ए definitely supports what the author wants to say. फिर once again my bad habit, we will jump options here. Option B, it has been observed that writers sometimes disregard the rules of rhetoric. Correct, एकदम appropriate usage लिखा है, sometimes break the rules, बिल्कुल है उनको उतना फ्रीडम। दिस सपोर्ट्स व्हाट द ऑथर हैज सेड इन द पैसेज। आपको ये थर्ड पैराग्राफ में मिल जाएगा ये लाइन, आई हैव इवन हाइलाइटेड इट ओवर हियर। सो एनीवे, मूविंग अहेड, ऑप्शन सी, व्हाट डज ऑप्शन सी से? ऑप्शन सी बोलता है रिगार्डिंग ग्रामर विमेन राइटर्स टेंड टू बी मोर अटेंटिव टू मेथड एंड एक्यूरेसी। ओके, यहाँ पर मेरे मन में बहुत बड़ा डाउट आ गया। ओके, क्योंकि कहीं पर भी ये बात तो बोला ही नहीं, विमेन की बात का सही, ये आदमी राइटर और विमेन राइटर कुछ अलग तौर तरीका यूज करते हैं, और कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट, वेदर दिस स्टेटमेंट सपोर्ट्स और वेदर इट डज नॉट सपोर्ट द ऑथर, इसके ऊपर क्लैरिटी है। मे बी द ऑथर सपोर्ट्स इट, मे बी द ऑथर डजंट, so it's a very gray area, very bad zone actually, and that is why I did not like the question framing here. But anyway, let's take a look at option B, and this is where thankfully it emerges as the answer. Why? क्या लिखा है? कंप्लीट सेंटेंसेस को कंपल्सरीली नाउन भी चाहिए और वर्ब भी चाहिए, और इस विचार को
इस कंपल्शन को, इस मैंडेटरी रूल को तोड़ दो, पेरिश कर दो इस थॉट को। हेल नो, दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट व्हाट द ऑथर इज सेइंग। आप बोलोगे अरे नहीं नहीं नहीं, पेरिश तो बोला है बॉस, देखो देखो पेरिश तो बोला है पैसेज में। ओके बोला है, मैं मानता हूँ, वेट, पेरिश यहाँ पे है, ठीक है। और क्या बात किया है, पेरिश द थॉट, करेक्ट, एक्सेप्टेड, नो डिनाइंग दैट, बट कौन सी चीज को, कौन से थॉट को पेरिश करना है वो तो ध्यान से पढ़ लीजिए जनाब। व्हाट इज रिटन, पैसेज में क्या बोला है, पैसेज में तो ऑथर सेज, क्या जरूरी है बार बार पूरे हर बार कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना, नहीं, वो विचार को खत्म करो। मतलब ऑथर इज सेइंग कि चलता है, तुम एक दो बार इनकम्प्लीट आधे अधूरे सेंटेंसेस लिख दो, चलेगा, ओके। ऑप्शन बी क्या बोलता है, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए नाउन वर्ब की जरूरत ही नहीं है बॉस, हटाओ, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑथर ने क्लियर कट बोला है हमें कि अगर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना है तो व्हाट डू यू नीड, व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यू नीड नाउन एंड यू नीड वर्ब, ठीक है। तो अगर एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना है तो भाई इतना तो लगे। बाकी चलो ठीक है, थोड़ा सा जजमेंट आपके ऊपर छोड़ देंगे कि इन सम टाइम्स, इन सम राइटिंग्स, यू डू नॉट यूज फुल सेंटेंसेस, यू जस्ट कट योर सेंटेंस इन हाफ समवेयर, यू ब्रेक ग्रामर का रूल। तो आपने आधा अधूरा कुछ एक क्लॉज लिख दिया तो उसको हम पूरा सेंटेंस डिक्लेयर नहीं करेंगे, बट चल जाएगा, वो चीज चलता है बीच बीच में थोड़ा सा स्टेपिंग आउट ऑफ बाउंड्स। So this is the key difference between what the author has said and what option B implies. Author is 100% stuck on this part कि कोई भी आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो मिनिमम व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द टू इंडिस्पेंसिबल पार्ट्स ऑफ राइटिंग, पे क्लोज अटेंशन टू द सेकंड पैराग्राफ हियर, क्या क्या है, तो नाउन और वर्ब मिनिमम लगेगा। और ऑप्शन बी बोलता है नहीं रे भाई कोई जरूरत नहीं, ये विचार निकाल दो दिमाग से, हट, ऑथर आके डंडे मारेगा। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज क्लियरली नॉट इन लाइन, नॉट सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज, तो दैट इज व्हाई आंसर ऑप्शन इज बी। सी में द jury is still out, we are not clear whether it is in line with what the author thinks or not, so that is why A and D you should be able to throw out very clearly, B and C में थोड़ा सा ambiguity होती है, but thankfully B clears the air very quickly, ठीक है। तो चलो, I hope that you understood the narration. Please let me know your scores in the comment section ASAP. Hit that like, share and subscribe button and I'll see you in the next video. Thanks a lot. Tata, bye bye, take care.